Now come to the next example, example number 4.23 from the textbook exercise. What is the problem statement? And this is the part of additional exercise. Okay, so we have to study this only for a competitive exams. What is the problem statement? A magnetic field 1.5 Tesla exists in a cylindrical region, underline cylindrical region of radius 10 centimeter in the direction parallel to the axis along east to west. So magnetic field is given to you east to west, and thus in a cylindrical region R is equal to 10 centimeter. This type of situation is given to us. The current wire of a current getting wire of 7 ampere is passed through it. It's arranged in a north to south direction and this region. Okay, so current is 7 ampere, north to south one. What is the magnitude and the direction of the force on the wire if the different cases given to us? A, wire intersect to the axis. Okay, second one, wire is turned from north south to northeast northwest direction, north south to northeast northwest direction. And the third case, wire is north south direction lowered from the axis by a distance of 6 centimeter. First we understand this problem, first we draw the figure, then after we solve one by one problem. Okay, so what is us given? B is from east to west. Generally we consider this direction north south east west. This is our direction. Generally we consider this direction like this. So this comes out this upward side. Okay, actually north south like this, north south east west, so upward and downward, actually this type of situation. So here if you coming out from the plane, this upward, and if you are moving into the plane, that's that's downward. Okay, तो यहाँ पे आपकी डायरेक्शन जो है 6 डायरेक्शन आपको अप्लाई करनी है. So right now this is what upward. Here you apply means you consider the total 6 direction क्योंकि force है और magnetic field भी है. So this is upward and here it is downward. Okay, then after we draw the cylindrical region figure also, if you see from the side. So what is this problem? See, this B is along east to west. चलो B draw करो इसमें east to west. So here we draw the B in this form, east to west, and it is uniform. So what is this? B. Okay, now a current carrying wire is placed in a north to south direction, and the current is flow through it. If you consider, then current is flow through it north to south. So the wire is placed in such a way. This is what wire, and current is passed through it what? I. The current is passed through is what? I, and north to south direction. So north to south direction. So we have, in first case we have to find this force and direction and magnitude of a force in this first case when this wire is intersect to the axis. So axis is this one. Okay, so if you see from the side, maybe you see from this side, maybe you see from this side, it depends on you, and any direction you just see it. Suppose let's we just see this everything from the left hand side, from this side. Okay, then what happens? See, if you just see this whole this thing from here, then magnetic field is in this direction. अगर आपके पास यहाँ पे प्लेन है ऐसा आप मान के चलो. ओके, आप ऐसा मान लो कि सिलिंड्रिकल रीजन में है पूरा, ऐसा यहाँ पे एक्चुअली सिलिंड्रिकल रीजन में. ठीक है, आप यहाँ इस व्यू को देख रहे हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगेगा. तो यहाँ पे नॉर्थ है, साउथ है, ए वेस्ट है और ए ईस्ट है. अगर आप इस तरह से प्लेन मानते तो आपको यहाँ से कैसा दिखेगा? इस तरह से. इफ यू सी फ्रॉम दिस साइड देन दिस इज द व्यू, देन इट इज सर्कुलर. ओके, एंड इफ यू कंसिडर दिस सिचुएशन देन मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन. अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो गोइंग इनटू द प्लेन, और यहाँ से देख रहे हो तो गोइंग, दिस कम्स out from the plane. So it depends on you from which side you have to see. Suppose let's consider we have to see from here. अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो फिर आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पे going into the plane in a circle, then the same figure is just drawn in such a way. Okay, तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ ऐसा होगा. This is your magnetic field. From which side you have to see? From here.
ओके, सो दिस व्यू इज जस्ट फ्रॉम हियर, आपने यहां से इसको देखा तो दैट इज अ साइड व्यू। ओके, साइड व्यू फ्रॉम ईस्ट साइड। ओके, आप यहां से देख रहे हो तो यहां पे सर्कल विथ डॉट आता है, यहाँ पे सर्कल विथ क्रॉस, मतलब आप यहां से देख रहे हो ईस्ट से, मतलब इस साइड से। ओके, तो यहां से आपने देखा कुछ इस तरह से फिगर हुई। ओके, इफ यू सी फ्रॉम दिस साइड देन व्हाट हैपन, सी इफ यू सी इट फ्रॉम दिस साइड देन व्हाट हैपन, हियर दिस साइड इज अपवर्ड एंड दिस साइड इज डाउनवर्ड इन दिस सिचुएशन। ओके, ए साइड अपवर्ड है, दस कमिंग आउट इज अपवर्ड एंड गोइंग इनटू इज डाउनवर्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कमिंग आउट मीन्स ऐसे अगर देख रहे हो आप तो लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड हुई, राइट हैंड साइड डाउनवर्ड हुई एज पर दिस वन। आप इस फिगर में यहाँ पे आपको अपवर्ड डाउनवर्ड देनी है तो क्या होगा, देखो नॉर्थ साउथ तो यही रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा। अगर ये है तो नॉर्थ साउथ तो ऐसे ही रहेगी, तो ए डायरेक्शन तो नॉर्थ साउथ ही है। ओके, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो ए डायरेक्शन में कुछ चेंज नहीं है, नॉर्थ साउथ ऐसे ही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो अपवर्ड यहां पे ये हुआ, अपवर्ड यहां पे मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो आप इसको ऐसे घुमाओ, ये अपवर्ड है, ठीक है, ऐसे घुमाओ तो इस डायरेक्शन यहां पे अपवर्ड आएगा, यहां पे क्या आएगा अपवर्ड, तो यहां पे क्या आएगा डाउनवर्ड। पहले तो फिगर को ही समझना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम कुछ समझ में आएगा ही नहीं। मैंने इस तरह से फिगर बनाई, ये जो फिगर यहां पे देख रहा हूं मैंने यहां पे ऐसे रख दी, whatever I am just see here, this figure I am drawing in this side. So यहाँ पे upward A था, तो देखो यहाँ पे ये हुआ upward, यहाँ पे downward A था, going into downward, तो going into downward A था, तो यहाँ पे देखो ये downward आ गया। नॉर्थ साउथ में कोई चेंज नहीं, नॉर्थ साउथ तो नॉर्थ साउथ ऐसे ही है, नॉर्थ साउथ ऐसे ही है, तो वायर में करंट कुछ ऐसे जा रहा है। दिस इज द सिचुएशन एक्चुअली, दिस इन अ सिलिंड्रिकल रीजन। सी यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिलिंड्रिकल रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड है। चलो वन बाय वन प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि इस सिचुएशन में यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई होगा। सो फर्स्ट में when wire is along north south direction, when wire is along north south direction, so wire is along north south डायरेक्शन, तो इस केस में सभी केस में फोर्स ही फाइंड करना है, ठीक है। तो Fm इज इक्वल टू ILB, Fm इज इक्वल टू ILB, एंगल फाइंड करो। चलो तो AI है मीन्स AIL है और AB है, एंगल कितना हुआ 90, सो राइट डाउन sin 90, सो पुट द वैल्यू, I कितना है 7, L कितना है, L मतलब यहां से लेके मतलब मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ, तो AL कितनी होगी 2R होगा। व्हाट इज द टोटल लेंथ, इट इज 2R। वाई, ओके, अगर यहां पे देखो तो मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड कितनी लेंथ है, इतनी लेंथ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड कितनी लेंथ हुई 2L, सो मतलब 2R, सो दिस इज 2R इनटू B, वैल्यू रखते बाद में। चलो तो पहले लिख देते I इंटू 2R इंटू B, सो B एज इट इज एंड sin 91। देखो IRB यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट करो 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, पुट द ऑल वैल्यू, यू गेट द फाइनल आंसर। ओके, सो कैलकुलेशन इज इन होमवर्क। That is the magnitude, not direction. Use right hand thumb rule. चलो right hand thumb rule का यूज करते हैं। IL यहाँ पे, IL इस डायरेक्शन में, B यहाँ पे, तो ये B है, ठीक है। फिर से this is IL and this is B. Arrange your right hand parallel to IL, तो IL को parallel अरेंज करो। Curl your fingers towards B, तो थंब कहां पे आता है, इनसाइड आता है। इनसाइड मतलब दस गोइंग इनटू द प्लेन, यहां पे गोइंग इनटू द प्लेन क्या है डाउनवर्ड, यहां पे गोइंग इनटू द प्लेन क्या है डाउनवर्ड। सी दिस इज IL, दिस इज, आप इससे भी काउंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। देखो यहां पे भी आप इससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, दिस IL इज डाउनवर्ड, IL इज डाउनवर्ड। सो यहाँ पे आप ऐसे अरेंज करो, सो अरेंज ऑफ राइट हैंड पैरेलल टू द IL, पैरेलल टू IL, कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड B, तो थंब कहाँ पे, यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है डाउनवर्ड। आप इस फिगर या इस फिगर में कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी फिगर को रेफरेंस लेके आप काउंट कर सकते हो। तो फिर राइट हैंड थंब रूल से आपका थंब आता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो फोर्स इज
along downward direction. ठीक है, so that is the first one. Now the second problem. What is the second problem? Actually that is given here. Second problem is the wire is turned north south to northeast northwest direction. Northeast northwest direction. Okay, north नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. तो मतलब नॉर्थ ईस्ट यहां पे है, नॉर्थ वेस्ट, ओके. नॉर्थ ईस्ट मतलब जो वायर है ऐसे पहले नॉर्थ साउथ में ऐसे था, ऐसे इसको आपने ऐसे रोटेट कर दिया, इसको आपने 45 पे, ओके नहीं नॉर्थ ईस्ट दिया है मतलब 45, नॉर्थ ईस्ट दिया है मतलब 45 डिग्री. तो वायर जो है फाइनली सेकेंड केस में कैसा हो गया, यहां पे सेकेंड केस ड्रॉ कर रहे हैं अब ऐसा कुछ, ठीक है. करंट तो वैसे ही जा रहा है, तो अगर आपने यहां पे भी ड्रॉ किया तो क्या होगा, सपोज सेंटर है, कुछ ऐसा हो जाएगा, वायर को आपने रोटेट कर दिया ऐसे कुछ, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज द नेक्स्ट केस फॉर अस. सो यू जस्ट रोटेट द वायर बाय 45 डिग्री, एक्सिस है तो यहाँ पे कितना डिग्री पे आपने रोटेट किया, 45 डिग्री पे. यू रोटेट द वायर एट द 45 डिग्री. देन व्हाट इज योर फोर्स, देन यू कंसीडर ओनली परपेंडिकुलर लेंथ. एज वी नो, वी कंसीडर दिस L, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, L इज L परपेंडिकुलर, L इज व्हाट एक्चुअली L परपेंडिकुलर. यू गेट द फाइनल आंसर. तो आपका आंसर कुछ ऐसे हो जाएगा, दिस इज FM means along नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. तो फिर आंसर होगा I इज इक्वल, सॉरी FM इज इक्वल टू IL परपेंडिकुलर B. तो परपेंडिकुलर तो फिर साइन तो कितना होगा 90, साइन तो कितना हो जाएगा 90. तो आपका परपेंडिकुलर कुछ यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ये पैरेलल हुआ तो पैरेलल कंपाउंड्स आपको लेना ही नहीं है. तो आपकी L परपेंडिकुलर ये हुई, दिस इज योर L परपेंडिकुलर. ओके, पैरेलल लेंथ काउंट नहीं करने, तो कुछ ऐसा आंसर होगा IL परपेंडिकुलर इंटू B इंटू साइन 90. ओके, परपेंडिकुलर है तो साइन 90 फिर से हो जाएगा एंगल. तो आपका L परपेंडिकुलर इतना मतलब 2R ही हुआ फिर से. तो आंसर कितना हो जाएगा, दिस इज I इंटू 2R इंटू B इंटू साइन 91. साइन 90 कितना हो जाएगा 1. मतलब इसके जैसा ही आंसर कुछ आया ना, I इंटू 2R इंटू B. L है एक्चुअली लेंथ तो इंक्रीज हो गई लेकिन इंक्लाइंड लेंथ इंक्रीज हुई, तो फोर्स जो इफेक्टिव लेंथ तो यही हुई, ये लेंथ पे तो फोर्स अप्लाई नहीं होगा. ओके, ये पैरेलल है, पैरेलल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, ओनली परपेंडिकुलर काउंट करना है. तो आपका आंसर कुछ होगा I इंटू 2R इंटू B. तो यहाँ पे भी FM का आंसर आपको होमवर्क में लिख देना है, ठीक है. जो भी आंसर आता है कैलकुलेशन होमवर्क में सभी वैल्यू रख के कर दो, आप इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हो. देन यू गेट द फाइनल आंसर बाय दिस वे. क्लियर है. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. सी, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन टू अस एंड दिस इज द वायर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. सो वायर मतलब नॉर्थ साउथ, मतलब यही कंडीशन है, सेम टू सेम जो फर्स्ट केस में थी. ओके, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज lower from the axis by the distance of 6 सेंटीमीटर. मतलब पहले वायर यहाँ पे था ऐसे, यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता है. तो पहले कुछ सिचुएशन ऐसी देखो, यहाँ पे सर्कल है मतलब सिलेंडर है, उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, सो नॉर्थ साउथ, दिस इज डाउनवर्ड अपवर्ड है. जो डायरेक्शन है साइड व्यू फ्रॉम ईस्ट है, ठीक है. तो यहाँ पे ईस्ट है और इनसाइड वेस्ट है. तो इस तरह की कुछ सिचुएशन है. पहले वायर कहाँ पे था, वेयर इज द वायर इनिशियली वायर यहाँ पे था ऐसे, दिस इज इनिशियली. नाउ वायर इज लोअर डाउन मतलब उसको डाउनवर्ड में कितना मूव किया 6 सेंटीमीटर. तो पहले यहाँ पे था डाउनवर्ड मतलब इस साइड अपने मूव किया. ओके, यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे अगर वायर हो तो ऐसे इनसाइड मूव किया.
क्योंकि ये इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपने ऐसे इनसाइड म्यू के इनसाइड में ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए मैं ये फिगर बना रहा हूँ। इनसाइड मतलब डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड यहाँ पे है, तो वायर जो है उसको आपने यहाँ पे ले लिया है, मान लो। तो फाइनली वायर यहां पे आ गया, इनिशियली वायर यहां पे था, और कितना आपने उसको लोअर लिया, 6 सेंटीमीटर। कितना आपने लोअर लिया, 6। तो अभी जो एल है वो इतनी हो गई, देखो, क्योंकि ये पहले एल इतनी थी, अभी एल इतनी हो गई। तो आप पहले ये फाइंड करो, तो आपको ये फाइंड इजीली कर सकते हो। ये रेडियस ही है, सर्कल है, तो अगर ये सर्कल है तो ये रेडियस ही है, ठीक है, आर। तो ए 90 डिग्री है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 सपोज आप मान लो कि ए बी है, तो ए बी का आंसर कैसे लिख सकते हो, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस 6 स्क्वेयर, ऐसा लिख सकते हो बाय द यूजिंग ऑफ राइट एंड पाइथागोरस रूल। सो दिस वन, सो आर इज व्हाट एक्चुअली, ए सेंटीमीटर में लिखो पहले यहाँ पे, तो 100 माइनस 36 दैट इज 64, इट्स मीन्स ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करो यहाँ पे, तो आंसर होगा 8 × 10⁻⁻² मीटर। दिस इज ए बी। तो मतलब इतना टोटल लेंथ इतनी इनसाइड हुई, तो इतनी लेंथ काउंट करनी है। ओके, तो इस लेंथ को आप एल डैश मान लो, आप इस लेंथ को कितना मान लो, एल डैश। एल डैश क्या हो जाएगा, 2ab। 2ab मतलब 16 सेंटीमीटर, इट्स मीन 16 × 10⁻² मीटर। तो फिर फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन वायर Fm इज इक्वल टू आई एल डैश बी। अगर फिर से एंगल कितना हुआ, ए आई एल है, इनसाइड बी है, तो एंगल तो 90 डिग्री होगा, तो फिर से साइन 90, तो ऐसा कुछ होगा आंसर। तो आप सभी वैल्यू रखो, चलो, तो आई कितना है, चलो वैल्यू आप रख देना, अभी सभी वैल्यू यहाँ पे है, तो सब वैल्यू रख के आप Fm जो है फाइंड कर लेना थर्ड केस में। तो कैलकुलेशन जो है होमवर्क में आप इस तरह से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली वायर यहाँ पर था ऐसे, आपने उसको इनसाइड मूव किया। इनसाइड मूव किया मतलब डाउनवर्ड मूव किया। यहाँ पे आप ए फिगर में बना नहीं सकते क्योंकि ये 3D व्यू है, ठीक है। तो आप इस फिगर में मान लो कि यहाँ पे था और डाउनवर्ड यहाँ पे, तो आपने ऐसे मूव किया 6 सेंटीमीटर, तो लेंथ जो है आपकी चेंज हो गई। ओके, क्योंकि इतनी लेंथ अभी है 2ab जितनी, पहले लेंथ जो है चेंज तो हो रही थी। इस केस में जब आपने वायर को टर्न किया ऐसे ही सेम प्लेन में ऐसा टर्न किया, तो लेंथ तो चेंज हुई ही है, देखो यहाँ पे, लेकिन इफेक्टिव लेंथ तो सेम ही रहेगी, परपेंडिकुलर, पैरेलल पे कभी फोर्स अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से पूरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज अवर आंसर एंड यू मस्ट बी नोट दिस एग्जाम्पल इन योर बुक्स प्रॉपर्ली। चलो नोट करो।